Very good morning, students. Welcome you back in Darwin's classes by Dr. UKL PhD Bio at Jain V. Biroli, Samastipur, Bihar. In last lecture, we have studied regarding the parts of flower. In continuing chapter, that is how do organisms reproduce, the 8th chapter of NCERT for class 10. So actually in sexual reproduction what happens? In sexual reproduction there is union of gamete. There is union of male and female gamete leading to the formation of zygote, and that zygote turns into young one. So in case of plant also, as we have studied, there are 4 parts. In flower there are 4 parts: calyx, corolla, endosperm and gynoecium. And its unit is termed as sepal, petal, stamen and carpel. So the first 2 parts, calyx and corolla, that means sepals and petals, they are accessory, they are helping but not actually participating in the act of reproduction. So the stamens and carpels, they are actually participating in the act of reproduction. So what will happen? The male gamete from stamen will fuse with the female gamete in the carpel or pistil. That means there will be union of gamete, and that union of gamete is termed as fertilization. But in case of plant, prior to fertilization, there is an important event, and that is termed as pollination. Because flower may be unisexual, flower may be bisexual. So first of all, the male gamete must have to travel up to the female gamete, and this travel, that means the transfer of pollen grain from anther to stigma, that is termed as pollination. So altogether, in case of plant, there will be pollination, then fertilization, then formation of zygote, formation of seed and their germination. So let us proceed for pollination and fertilization. So pollination means transfer of pollen grain from anther to stigma. Anther must be mature and stigma must be receptive, and that must be on the same species. If the pollen grain from mango reaches up to the stigma of lychee, that will not facilitate pollination. The pollen grain of undesirable species, that will die out. So there must be transfer of pollen grain in same species. So in case of plant, the seed is formed when the male gamete present in pollen grain unites with the female gamete present in ovule. Here the gametes either on same flower or on different flower. In case of plant, it takes place by 2 processes, pollination and fertilization. Pollination, only transfer of gamete, and fertilization, union of gamete. So pollination is transfer of pollen grain from anther to stigma, and it must be in the same species. So it may happen that pollen grain of one flower may reach up to the stigma of the same flower. That means self-pollination. So pollination may be categorized on the basis of the transfer of pollen grain, self and cross pollination. If the pollen grain falls in the same flower on the stigma of the same flower, it is termed as self-pollination. Or it may happen that the pollen grain from the anther reaches up to the stigma of another flower on the same plant. If plant is same, it will be treated as self-pollination. क्योंकि जब एक ही पौधे हैं और उसके एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर ट्रांसफर हो रही है पॉलन ग्रेन, तो इसका जेनेटिक में सिमिलर होंगे, सेम होंगे, इसमें कहीं कोई वेरिएशन नहीं होगी, और ये क्या होंगे, दिखने में क्रॉस पॉलिनेशन है बट एक्चुअली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन. तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होंगे,
the pollen grain from the anther of the same flower reaches up to the stigma of the same flower or on another flower on the same plant. And in cross pollination, what will happen? The pollen grain from anther of a flower will reach up to the stigma of the flower of the same species, that means on another plant. So in case of self pollination, there is no need of external agency because both the structures are nearby and transfer will be very easier. But in case of cross pollination, there is need of agencies. Agencies are required to facilitate the transfer of pollen grain from one flower to another flower. That may be wind, with the help of wind, and that is termed anemophily. With the help of water, hydrophily. With the help of insect, entomophily. With the help of birds, ornithophily. The study of bird is termed as ornithology. So with the help of bird, if pollination is being facilitated, it is termed as ornithophily. So these are the agencies which facilitates the cross pollination. So let us sum up the differences between self and cross pollination. As you see, the pollination may be self pollination or cross pollination. So this is the differences that will make you the things clear, what is self and what is cross pollination. So in case of self pollination, pollination occurs within a flower or between two flowers of the same plant. या तो एक ही फ्लावर में pollen grain का ट्रांसफर होगा from anther to stigma, या फिर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर लेकिन उसी प्लांट पे होंगे. That will be self pollination. In case of cross pollination, cross pollination occurs between two flowers born on different plant. अलग अलग पौधों के बीच में आदान प्रदान होंगे pollen grain का, लेकिन वो क्या होंगे? ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज की. पहले ही बताया है कि जैसे एक ही ऑर्चार्ड में इमेजिन कीजिए नींबू भी है, अमरूद भी है, तो नींबू के pollen grain यदि अमरूद के स्टिग्मा पे चला गया, इट विल नॉट बी टर्म्ड एज पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन नहीं कहलाएगा. या वाइस वर्सा, तो क्या होंगे? नींबू के pollen grain नींबू के स्टिग्मा पे जाए, अमरूद का pollen grain अमरूद के स्टिग्मा पे जाए, तो क्या होंगे? एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे. दैट विल बी क्रॉस पॉलिनेशन. In case of self pollination, there is no need of external agency, no dependency on external agency in case of self pollination, because they are nearby and it will reach very easily from their anther to stigma, because their positions are in such a way that when there will be maturity in the anther, it will burst and stigma is to some extent lower to the anther. Then what will happen? Due to force of gravitation, the pollen grain will reach on the stigma. So there is no need of external agency. But in case of cross pollination, there is need of external agency, there is need of medium that may be both abiotic as well as biotic. In case of abiotic, it is air, it is wind and water, that is wind and water. So when it will be with the help of wind, it is termed as anemophily. When it is with the help of water, it is hydrophily. In case if it takes place with the help of biotic factor, living being, that means they may be insect, entomophily, birds, ornithophily, or it may be bat, chiropterophily. So there is need of agencies in case of cross pollination, because the pollen grain has to reach from one plant to another plant with the help of external agency. So there is dependency. और जाहिर सी बात है, जहां डिपेंडेंसी नहीं है तो वहां क्या होंगे? pollen grain का बर्बादी नहीं होगा. There will be no wastage of pollen grain, and therefore what will happen? The pollen grain will produce in comparatively smaller quantity. pollen grain की संख्या क्या होगी? comparatively कम होंगे, क्योंकि यहाँ इंश्योर होगा, डिपेंडेंसी नहीं होगी. But in case of cross pollination, pollen grains are produced in large number, because during transportation there may be wastage of pollen grains, क्योंकि चांस फैक्टर है,
एयर के द्वारा जा रहे हैं तो सारे के सारे पहुंच नहीं जाएंगे, इसीलिए क्या होंगे, नंबर पॉलन ग्रेन की बहुत अधिक होगी, सो दैट इट मस्ट इंश्योर द पॉलिनेशन, पॉलिनेशन को इंश्योर करे। दूसरी बात कि ऑलवेज द नंबर ऑफ मेल गैमेट्स आर मोर देन दैट ऑफ द फीमेल गैमेट। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ मीन्स within same flower or within same plant, and cross means between two different plants of same species। इसे ध्यान रखना है कि पॉलिनेशन होंगे, क्रॉस होंगे, लेकिन किस में होगी, सेम स्पीसीज में होगी। Yes, these are the terminology given for the agents of pollination। वो एजेंट जो पॉलिनेशन फैसिलिटेट कराते हैं दोनों तरह के हो सकते हैं, एबायोटिक फैक्टर एज वेल एज बायोटिक फैक्टर। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है दैट इज विंड। विद द हेल्प ऑफ विंड अधिक से अधिक पॉलिनेशन को फैसिलिटेट कराते हैं और इसके लिए टर्म दिया गया है एनीमोफिली। दूसरा है वाटर, हाइड्रोफिली। और जो बायोटिक फैक्टर है मोस्ट प्रोमिनेंट दे आर द इंसेक्ट, bees, butterflies, they are the insect, and the terminology for the study of insect is entomology, and therefore it is entomophily, pollination facilitated by insects, birds, ornithophily, the study of bird is termed as ornithology, interrelated term, therefore it is easier, and these are the things which is to be asked in general competitions too. Whenever you will complete your engineering degree, you will complete any of the degree, and for the purpose of job there will be GK, there will be GS, and these terms are very useful even later on, therefore these terms must be memorized। ये सारी बातें आपके ज़हन में होनी चाहिए। Next one is the bat, Chiropterophily, and altogether if it is being with the help of animal broadly, it is being given the term zoophily। So these are the terminology related with the agencies, with the factors which facilitate the pollination। चलिए, आपके ज़हन में एक सवाल पैदा हो सकते हैं, एक प्रश्न उठ सकते हैं कि क्या होगा यदि एक स्पीसीज का पॉलन ग्रेन दूसरे स्पीसीज के फ्लावर पे चला जाए। यानी कि बागीचे में आम का भी पौधा है, लीची का भी पौधा है, तो लीची का पॉलन ग्रेन आम के ऊपर चला जाए तो क्या होंगे, आपस में हर एक स्पीसीज का अपना एक आइडेंटिफिकेशन होता है, अपना एक यूनिटी होती है, एक जान पहचान होती है। अब जैसे इमेजिन कीजिए कि आप कहीं प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, किसी का वेट कर रहे हैं या किसी ट्रेन का वेट कर रहे हैं और कोई ट्रेन जा रही है और उसमें अचानक से आपके कोई चिर परिचित आदमी मिल जाए, दिखाई दे, केवल दिखाई दे दूर से ही, तो दोनों एक दूसरे को देखते ही दोनों क्या करते हैं, एक फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, एक खुशी की लहर दौड़ जाती है और लगता है कि अरे ये हैं, बाय बाय टाटा करते हैं, मुस्कुराते हैं, या फिर फोन से बात करते हैं, अच्छा आपने हमें देखा या मैंने आपको देखा इस स्टेशन पे, या फिर जब अगली बार मुलाकात होती है तो आपस में हम लोग चर्चा करते हैं कि आप उस समय यहाँ जा रहे थे। तो ये क्या है, आपस में एक दूसरे का रिकॉग्निशन है, एक रिलेशनशिप है। लेकिन ढेर यात्री जा रहे हैं ट्रेन में, दिखाई देते हैं, कहीं कोई रिएक्शन नहीं होती है, कहीं कोई फीलिंग नहीं आती। वैसे ही प्लांट में क्या होंगे, जब अनदर स्पीसीज के पॉलन ग्रेन आ जाएंगे उसका कहीं कोई सेंसेशन नहीं होगा, कोई फर्दर एक्टिविटी नहीं होगी, यानी कि वो क्या हो जाएंगे, दैट पॉलन ग्रेन विल डाई आउट, वो खत्म हो जाएंगे, इट विल बी ऑफ नो यूज, इसकी कोई उपयोगिता नहीं होगी। लेकिन जब एक्चुअल पॉलिनेशन हो रहा है, सेम स्पीसीज के आ रहे हैं, तब अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होंगे, द पॉलन ग्रेन विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग, क्या करेंगे, इट विल स्टार्ट formation of pollen tube, and that pollen tube will carry the male nucleus, the male gamete, और इसको कैरी करके कहाँ ले जाएंगे, थ्रू स्टाइल, आया था कहाँ, स्टिग्मा के ऊपर, अब इसको लेके कहाँ जाएगा, स्टाइल से होते हुए ओवरी में इसको ले जाएगी और ओवरी में इन करेगी किसमें, ओव्यूल में, और वहां क्या होंगे, देयर विल बी फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद दैट ऑफ द एग न्यूक्लियस, जो मेल न्यूक्लियस है उसकी फ्यूजन होगी किसके साथ, एक न्यूक्लियस के साथ, ओव्यूल के न्यूक्लियस के साथ, ठीक है, और यही क्या कहलाएंगे, इट विल बी एक्चुअल फर्टिलाइजेशन। और इसके बाद क्या होगी, जब फर्टिलाइजेशन होगी दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट,
और इसी जाइगोट का फर्दर सेल डिवीजन होगी, सेल डिफरेंशिएशन होगी और ये एम्ब्रियो को बनाएंगे। सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस आफ्टर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद क्या होता है? तो क्या होंगे, जब एप्रोप्रिएट पॉलन ग्रेन आएंगे स्टिग्मा के ऊपर तो इसके बीच में आपस में वार्तालाप होगी, यानी कि ये एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचान जाएंगे और फिर पॉलन ग्रेन क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कराएंगे, पॉलन ट्यूब बनाएंगे। और जब पॉलन ट्यूब बनाएंगे तो क्या होगी, हर एक पॉलन ग्रेन में 2 न्यूक्लियाई होते हैं। एक न्यूक्लियाई होगा, एक न्यूक्लियस होगी किसके लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, जिसको बोलेंगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और दूसरा न्यूक्लियस होगा वो क्या होंगे, जेनरेटिव न्यूक्लियस, जो एक्चुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ क्या होंगे, एक न्यूक्लियस का काम होगा ये पॉलन ट्यूब को बनाएंगे और जो दूसरा न्यूक्लियस होगा वो एक्चुअल फैसिलिटेट करेगा क्या, फर्टिलाइजेशन। तो किसी किसी स्पीशीज में ये पॉलन ग्रेन की जब शेडिंग होती है, जब मैच्योर हो जाते हैं तो 2 न्यूक्लियाई होते हैं, एक जेनरेटिव न्यूक्लियस, दूसरा वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और दूसरे में क्या होंगे, एट ए टाइम देयर आर 3 न्यूक्लियाई। जब पॉलन ग्रेन मैच्योर होंगे, शेडिंग होगी, इसमें 3 न्यूक्लियाई होंगे, एक वेजिटेटिव और 2 जेनरेटिव। यहाँ 2 जेनरेटिव है तो पहले से यदि 2 जेनरेटिव है देन इट इज ओके। यदि पहले से एक ही जेनरेटिव है तो क्या होंगे, जब ये पॉलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए आएगी और इन करेगी इसमें ओव्यूल में, तो एट द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल जो मेल गैमेट होंगे, जो जेनरेटिव न्यूक्लियस होंगे वो क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे और वो 2 बन जाएंगे, क्योंकि हमें जरूरत है 2 न्यूक्लियाई की। इसलिए तो यहाँ जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के, दैट मींस कार्पेल और स्टिग्मा। स्टिग्मा के ऊपर क्या है, एप्रोप्रिएट पॉलन ग्रेन है। अब ये पॉलन ग्रेन क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, पॉलन ट्यूब बनाएंगे एंड इट गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द स्टाइल। ये स्टाइल क्या करती है, पैसेज प्रोवाइड करती है, किसके लिए, पॉलन ट्यूब के लिए, रास्ता बनाती है और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। तो ये मेल गैमेट को कैरी कर रही है, लेकर के आ रही है और इसको कहां जाना है, एग सेल। दिस वन इज द एग सेल। तो एक न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगी। तो यदि 2 न्यूक्लियाई है पहले से तो एक फ्यूज करेगी एक न्यूक्लियस के साथ जो कहलाएगा सीन गैमेट, एक्चुअल फर्टिलाइजेशन। और जो दूसरा मेल गैमेट होगा, मेल न्यूक्लियस होगा, वो फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ और ये बनाएंगे PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यहाँ क्या होंगे, देयर आर 2 यूनियन, 2 मेल गैमेट होंगे, या तो पहले से 2 मेल गैमेट है या फिर एट द टाइम ऑफ एंट्री इनटू द ओव्यूल ये डिवाइड कर जाते हैं, कैरियोकाइनेसिस हो जाती है और 2 मेल न्यूक्लियाई बन जाते हैं। तो आउट ऑफ द 2 मेल न्यूक्लियाई वन फ्यूजेस विद द एग न्यूक्लियस, और एग न्यूक्लियस के साथ जो फ्यूज करता है मेल गैमेट, मेल न्यूक्लियस, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सीन गैमेट। दैट इज द एक्चुअल फर्टिलाइजेशन। सीन गैमेट इज द एक्चुअल फर्टिलाइजेशन। और दूसरा गैमेट क्या होगा, जो दूसरा मेल न्यूक्लियस है, दैट विल फ्यूज विद पोलर न्यूक्लियाई। ये पोलर न्यूक्लियाई इसलिए कि यहाँ 2 न्यूक्लियस है तो इस दोनों के साथ फ्यूज करेगा। तो पहले से ही क्या है, N+N, ये 2N है और एक N क्या गया, मेल गैमेट, मेल न्यूक्लियस। तो इसे हम क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई प्लस मेल न्यूक्लियस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ 3N, और इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो एज ए रिजल्ट ऑफ सीन गैमेट जो एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होगी, दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, एंड दिस जाइगोट after continuous cell division and cell differentiation that will lead to the formation of embryo। actual embryo बनाएगी जो आगे चल करके प्लांट बनाएंगे। यानी कि ये एम्ब्रियो क्या है, सीड के अंदर सोया हुआ नन्हा पौधा है, शिशु पौधा है, जो आफ्टर जर्मिनेशन बड़े होंगे, रेडिकल बनाएंगे, प्लूमुल बनाएंगे, रेडिकल रूट सिस्टम बनाएंगे, प्लूमुल शूट सिस्टम बनाएंगे, और इसकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए इसमें चाहिए रिजर्व फूड। और ये रिजर्व फूड कहाँ पाए जाते हैं, इसके कॉटिलिडन में। और ये रिजर्व फूड क्या है, दिस इज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म इज द रिजर्व फूड मटेरियल। एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म इज, दिस वन इज रिजर्व फूड for the development of embryo।
एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए क्या है, ये रिजर्व फूड है, क्या, एंडोस्पर्म। तो क्या होंगे, देयर आर टू फ्यूजन, यानी कि दो शादी हो रही है एंजियोस्पर्म प्लांट में। क्या हो रही है, दो शादी हो रही है। देखते होंगे अपने यहाँ भी जब शादी होती है तो शादी होती है और एक छोटा बच्चा भी जाता है, और कई बार जब छोटा बच्चा लौट के आता है तो पूछता है हमारी दुल्हन कहाँ है। या कई बार पुराने फिल्मों में देखे होंगे कि हीरो हीरोइन का किस्सा अपना चलता रहता है, जो मेन लीड रोल में है उनकी कहानी चलती रहती है, और उसके साथ साथ उसके घर में कई बार उसके जो नौकर चाकर होते हैं उनका भी चलता रहता है। नहीं, तो यहाँ भी उसी तरह से चल रहा है। देयर आर टू यूनियन ऑफ गैमेट्स, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होंगे, द सीन गैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टुगेदर विद टर्म एज डबल फर्टिलाइजेशन। सीन गैमी और ट्रिपल फ्यूजन को मिला करके हम क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होगी, इन केस ऑफ प्लांट देयर आर फ्यूजन ऑफ टू मेल न्यूक्लियर, two male gamete with one with that of the egg nucleus and another with polar nuclei. So the fusion of the male gamete with egg nucleus, that is syngamy, actual fertilization leading to the formation of zygote. That means that is 2n diploid structure that will lead to the formation of embryo. And second, male gamete fuses with the polar nuclei leading to the formation of primary endosperm nucleus, PEN, that will lead to the formation of endosperm, and that endosperm is the reserve food material for the development of the embryo की डेवलपमेंट के लिए। तो कई बार ये रिजर्व फूड मटेरियल एग्जॉस्ट हो जाते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कई बार बचे रह जाते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। तो इसमें क्या होगी, जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है फ्लावर के, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, विदर्ड ऑफ हो जाएंगे, वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, वो नहीं बचेंगे। तो ये क्या हो जाएगी, इसका काम हो गया, अब ये खत्म हो जाएंगे। ये जो ओवरी है, दैट ओवरी विल गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, जो ओव्यूल है दैट विल कन्वर्टेड इनटू सीड। यहाँ क्या होंगे, जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ फ्लावर है वो सारे के सारे विदर्ड ऑफ हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। अब जैसे ये स्ट्रक्चर है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। कैलिक्स कोरोला पहले ही खत्म हो गए हैं, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। तो कैलिक्स कोरोला और जो पार्ट है स्टैमेन के या स्टैमेन्स, वो साथ ही साथ स्टिग्मा, स्टाइल, ये सारे के सारे डिसअपियर हो जाएंगे। नाउ इट इज ऑफ नो यूज। बचा हुआ क्या रह जाएगा, बचा हुआ रह जाएगा हमारा ओवरी, एंड दैट ओवरी विल गेट कन्वर्टेड इनटू fruit after getting maturity, after fertilization क्या होंगे, ovary will get converted into fruit, ovule will get converted into seed। तो क्या होंगे, किसी ovary के अंदर एक ही सीड होंगे, एक ही ओव्यूल होगी, एक ही सीड होगा। और यदि ओव्यूल की संख्या बहुत अधिक है तो जितनी अधिक ओव्यूल होगी उतने सीड की फॉर्मेशन होगी। यहाँ जो स्ट्रक्चर है एंटीपोडल्स डिजेनरेट कर जाएंगे, पोलर न्यूक्लियाई ये बनाएंगे एंडोस्पर्म, और यहाँ जो साइड में दो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं फिलीफॉर्म एपिडेटस है ना, ये क्या हो जाएंगे, सिनर्जिक्स इसको हम बोलते हैं, और ये भी विदर्ड हो जाएंगे। ये क्या है, ये दोनों तरफ से ये पैसेज प्रोवाइड करता है किसको, पॉलन ट्यूब को, किसके लिए, एक्चुअल फर्टिलाइजेशन के लिए। देखते होंगे जैसे शादी वगैरह में क्या होती है, शादी दुल्हन की होती है, दूल्हे स्टेज पे होते हैं और दुल्हन को दोनों तरफ से उसकी सहेलियां पकड़ के ले जाती है शादी के लिए। लाइकवाइज शादी किसकी होनी है, एक सेल की। एक्चुअल फर्टिलाइजेशन यूनियन क्या होना है, एक सेल का, एक न्यूक्लियस का, और साथ में ये दोनों अगल बगल में है। ये क्या करते हैं, सिनर्जिड्स, दे आर गिविंग पैसेज टू द मेल गैमेट। ये पैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, मेल गैमेट को लेकर के जो आ रहे हैं पॉलन ट्यूब उसको, यानी कि ये हेल्प कर रहे हैं। तो सारे के सारे स्ट्रक्चर ऑल टुगेदर क्या करते हैं, दे आर हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सीड। और जब सीड की फॉर्मेशन हो जाएगी तब फिर क्या होगा, सीड का डिस्पर्सल होगा, क्योंकि एक ही जगह सीड नहीं रहेंगे। तो उसके लिए जो एयर है, उसके लिए बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, हम लोग क्या करते हैं, सीड के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं कि वो एक ही जगह सारे के सारे बीज नहीं हो, दूर दूर तक फैले, जिससे कि वो ग्रो कर सके। एक ही जगह होने पर क्या होगा, वो कम्पीट करेंगे फॉर न्यूट्रिएंट्स, फॉर सॉइल, फॉर वाटर, फॉर एयर, और हेल्दी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी।
तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपेंस, द जाइगोट गेट कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनाते हैं और यही एम्ब्रियो आगे चल करके क्या बनाएंगे, प्लांटलेट बनाएंगे। एम्ब्रियो क्या है, सोया हुआ नन्हा शिशु पौधा है। ओव्यूल क्या बनाएंगे, सीड बनाएंगे, ओवरी फ्रूट बनाएंगे और जो रेस्ट पार्ट है वो विदर्ड ऑफ हो जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं रहेगी। अब जो वॉल ऑफ ओव्यूल है, ओव्यूल की जो वॉल है, इंटेगुमेंट है, दैट विल कन्वर्ट इनटू सीड कोट। ओव्यूल की जो वॉल है, इंटेगुमेंट्स, दैट विल कन्वर्ट इनटू सीड कोट। जो ओवरी है इसकी जो वॉल है वो क्या बनाएंगे, एपिकार्प। जो फ्रूट है उसका सबसे बाहरी लेयर जो है दैट इज एपिकार्प, बीच वाला भाग मेसोकार्प, भीतर वाला भाग एंडोकार्प और जनरली हम लोग फ्रूट में मेसोकार्प को खाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद और चाहेंगे कि आप लोग इसे देखें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और ये बताएं कि इसे किस तरह से आपके लिए बेहतर बनाया जाए, सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट। थैंक यू वन एंड ऑल।